مسیح کے جلالی سسٹر آپ مسیح اپنا کے کیمرہ جلالی آن کریں پلیز، آپ کیمرہ آن کریں. سوری کیمرہ دراصل لائٹ بند ہے، آپ کی آواز بھی مجھے تھوڑی تھوڑی نا بریک ہوتی ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ جلدی وائنڈ اپ کروں تاکہ میرا بھی نیٹ نہ بند ہو جائے. چلیں تو ٹھیک ہے. ہاں جی، کیونکہ لائٹ ہر روز اس ٹائم پہ بند ہوتی ہے، تو ہم خداوند کی آواز کو سنیں گے. مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. تو آج ہم کیونکہ یہ پورا ویک ہم روح القدس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، عید پینتیکوست کے بارے میں، جو کہ خداوند نے روح القدس کا ہمیں تجربہ بخشا ہے. روح القدس سے مامور ہیں ہم جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، خداوند کے روح القدس سے واقف ہیں. تو آج خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے افیسیوں کے خط میں سے اس کا 5واں باب، اس کی 18ویں آیت، روح القدس کی معموری کے تعلق سے. تو یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے 18ویں آیت 5واں باب، اس کی 18ویں آیت، افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. یہاں ہم اسی آیت کے آخری حصے میں اس کے بارے میں ہم غور کریں گے، سیکھیں گے. تو لکھا ہے کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، شراب میں متوالے نہ بنو بلکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. تو یہاں پر روح سے معمور ہوتے جاؤ کے بارے میں خدا کا بندہ پولس رسول بیان کرتا ہے. تو روح القدس میں جو بپتسمہ پانا، اس سے مراد ہے روح سے معمور ہونا. اور روح کی جو معموری ہے یہ ایک مسلسل عمل ہے، اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، بلکہ مسلسل ہر وقت، ہر روز، ہمیں ہر لمحہ خداوند کے روح سے معمور ہونا ہے. تو ہم جتنے یہاں پر موجود ہیں، ہم اس بات سے واقف ہیں کہ روح القدس کی معموری کیا ہوتی ہے، روح القدس کی حضوری کیا ہوتی ہے. تو یہاں پر خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. تو ضرور ہے کہ ہم ہر روز خدا کے روح القدس سے معمور ہوں، روح کا بہاؤ ہماری زندگی میں قائم رہے. ایک روحانی شخص جو ہے، نجات پانے والا جو شخص ہے، جو کبھی خالی تھا لیکن وہ تازہ اور صاف پانی سے بھرا گیا. تو روح القدس کی معموری بھی ایسی، وہ شخص برتن کی طرح اب خالی نہیں رہا، بلکہ اس کے اندر روح القدس بس رہا ہے، روح القدس آ گیا ہے اور وہ روح القدس سے بھر گیا ہے. تو پہلا کرنتھیوں کے 3 باب کی 16ویں آیت میں بھی لکھا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. تو روح کی معموری جو ہے ایسے ہی ہے جیسے اس برتن میں صاف پانی ڈھیلا جاتا ہے جب تک وہ اوور فلو نہیں ہونا شروع ہو جاتا، جب وہ اس برتن میں سے باہر نکلنا نہیں شروع ہو جاتا. تو روح القدس کی معموری بھی ایسے ہی ہے. اور وہ شخص جو روح میں غرق ہو جاتا ہے یا اس سے معمور ہو جاتا ہے، وہ خدا کی حضوری سے اس حد تک معمور ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی سے روح القدس کی جو معموری ہے وہ دوسرے لوگوں کو متاثر کرتی ہے. روح القدس سے معمور ہونا، یہی خدا کا کلام کہتا ہے. پھر ہم کلام مقدس میں دیکھتے یوحنا کی انجیل میں اس کے 7ویں باب کی اگر ہم دیکھیں 37ویں 38ویں آیت میں، تو وہاں پر لکھا ہے، پھر عید کے آخری دن جو خاص دن کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. اور یہ زندگی کا جو پانی ہے، یہ دوسروں کی روحانی شفا اور یسوع مسیح کی جو زندگی بخش اس کا پیغام ہے، اس کی صورت میں بہ نکلے گا. زندگی کا جو پانی ہے، جیسے ہم زبور نویس بھی کہتا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے، پیاسی ہے. تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں روح سے معمور ہونا ہے، ہمارے اندر سے پاک روح کی ندیاں جاری ہو جانی چاہیے.
जब खुदा का रूह आता है, जब उसकी मामूरी हमारी ज़िंदगी में आती है, तो ज़रूर है कि हम रूहुल कुद्स से मामूर हों, रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगियों से हाँ, खुदावंद की गवाही कायम हो जाए और लोग जानें कि ये खुदा का बंदा रूह कुद्स से मामूर है। अगर हम खादिम होते हुए देखें तो ज़रूर है कि खादिम रूहुल कुद्स से मामूर हो। ज़बूर में पहला ज़बूर उसकी 3री आयत में लिखा है कि वो उस दरख्त की मानित होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक़्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार-बार होगा। वो शख्स जो रूहुल कुद्स से मामूर है, उसकी ज़िंदगी के लिए ताज़गी और कुव्वत पाए, क्योंकि ऐसे ही है जैसे एक प्यासा जब पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझती है, तो रूह की जो मामूरी है वो ऐसे ही है जैसे एक प्यासे की प्यास बुझ जाती है। तो खुदा का बंदा डीएल मोडी बहुत बड़ा खादिम खुदा का गुजरा है। वो कहता है कि उससे किसी ने कहा कि सर आप बार-बार रूहुल कुद्स से मामूर होने की दुआ क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं इसलिए ये दुआ करता हूँ क्योंकि मैं बह जाता हूँ। मैं कम हो जाता हूँ, मुझे ज़रूरत है कि मैं रूह से मामूर होता जाऊँ। तो खुदा का कलाम भी हमें ये कहता है, इसीलिए खुदा का बंदा पौलुस रसूल बयान करता है कि रूह से मामूर होते जाओ। हर रोज़, हर लम्हा हमें खुदा के रूह से मामूर होना है, हर रोज़ उसकी मामूरी में चलना है। अगर हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ उसी टाइम जब हमने रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाया, तभी हमें ये तजर्बा हुआ है और उसके बाद हम स्टक हो गए हैं या खिदमत में ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं या कभी फ़ील ही नहीं किया कि हमने फिर से खुदावंद के कदमों में जाना है, फिर से रूह से मामूर होना है, क्योंकि हम बह जाते हैं। तो खुदा चाहता है कि हम रूहुल कुद्स से मामूर होते जाएँ, रूहुल कुद्स से भरते जाएँ और हमारी वजह से जो हमारे अंदर ज़िंदगी के पानी की नदियाँ हैं, उससे दूसरे लोग सैराब हो सकें। अमाल की किताब उसके चौथे बाब की 8वीं आयत में भी हम देखें तो पतरस ने वहां पर लिखा है कि पतरस ने रूहुल कुद्स से मामूर होकर उनसे कहा, ये सदर अदालत में जब पतरस और यूहन्ना की पेशी की बात थी, तो वो बयान करता है कि वहां पर लिखा है कि पतरस ने रूहुल कुद्स से मामूर हो रूहुल कुद्स से ताज़ा मामूरी पाई, जिससे जिसने उसे फौरी तौर पर एक तहरीक बख्शी, हिकमत बख्शी और दलेरी बख्शी और यूं उसे खुदा की जो सच्चाई थी, उसकी मुनादी जो वो कर रहा था, उसमें उसको मदद मिली। हमें भी इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि खुदा कैसे काम करता है, लिहाज़ा हमें चाहिए कि रूह से मामूरी जो है, वो एक वक़्त का काम नहीं बल्कि मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। हर साल हम ईद पेंतिकोस्त मनाते हैं, रूहुल कुद्स से लोग मामूर होते हैं, तो ज़रूर है कि ये मामूरी जो है, ये रूहुल कुद्स का जो बपतिस्मा है, ये एक टाइम में होता है, लेकिन ज़रूर है कि रूहुल कुद्स की मामूरी हमारी ज़िंदगियों में हम बाइबल मुकद्दस में अमाल की किताब में ही देखते हैं 7वें बाब की 55 आयत में, वहाँ पर स्तिफनस की संसारी के बारे में जब उसको संसार किया जाता है, तो वहाँ पर भी लिखा है कि उसने रूहुल कुद्स से मामूर होकर आसमान खुदा का जलाल और यसू को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस तरह वो रूहुल कुद्स से मामूर हुआ। जब रूहुल कुद्स की मामूरी हमारी ज़िंदगियों में होती है, तो हम खुदा का जलाल देखते हैं, हम यीशु मसीह को देखते हैं कि किस तरह वो हमसे खुश होता है, खुदा हमारी खिदमत से खुश होता है, खुदा उसके साथ चलने में जो हम मेहनत करते हैं, जो हम कुर्बानियाँ देते हैं, खुदा उसको देखता है। तो ज़रूर है कि हम रूहुल कुद्स से मामूर हो सके। इसी तरह अमाल 13वें बाब में हम देखते हैं 9वीं आयत में, वहाँ पर शाऊल जिसका नाम पौलुस है, उसके बारे में भी बयान किया है कि रूहुल कुद्स से भरकर उसने भी नज़र की, जब वो कुप्रोस में था, तो वहाँ पर वो गवाही देता है। तो जब पौलुस ने रूहुल कुद्स की जो ख़ास और ताज़ा मामूरी पाई, लिखा है कि रूहुल कुद्स से भरकर वो रूहुल
जब तू हाथ रखेगा तो रूहुल कुद्स से भर जाएगा। तो जरूर है कि हम रूहुल कुद्स की ताजा मामूरी को पा सके। पौलुस रसूल बपतिस्मा याफ्ता था, रूहुल कुद्स से बपतिस्मा उसको मिला हुआ था, लेकिन रूहुल कुद्स की मामूरी जरूरी थी कि उसकी जिंदगी में आए। तो खुदा चाहता है कि बार बार जो मिलने वाली भरपूरी है, रूहुल कुद्स की मामूरी है, वो हमारी जिंदगियों में काम करे। और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह एक जो मसीही खिदमत की मुखालफत का सामना करते हैं, उनके लिए भी हमें जरूर है कि हम रूहुल कुद्स से मामूर हो सकें। फिर मसीह के पैगाम को फैलाने के लिए भी रूहुल कुद्स की मामूरी बहुत जरूरी है। फिर बराह रास्त डायरेक्ट इब्लीस की जो सरगर्मियां हैं उनको ललकारने के लिए भी रूहुल कुद्स से मामूर होना बहुत जरूरी है। और वो सब मसीही जो रूहुल कुद्स में बपतिस्मा याफ्ता हैं, उनके लिए रूह की बार बार और जारी रहने वाली भरपूरी एक मामूल का उनका तजर्बा होना चाहिए। ये नहीं कि कभी हम किसी मीटिंग में गए हैं जो रूहुल कुद्स से भर गए, हमें रूह से फिर से हमें रूह ने ताजा किया है, नहीं, बल्कि हर रोज एक खादिम होते हुए, एक ईमानदार होते हुए, खुदा को जानने वाले होते हुए, एक खुदा के साथ चलने वाले होते हुए, हमें जरूरी है कि हम बार बार रूहुल कुद्स की मामूरी से वाकिफ हो सकें। ये हमारा लाइफस्टाइल बनना चाहिए। हम रूह से मामूर होते जाएं, जिस तरह खुदा का बंदा कहता है डीएल मोडी के मैं बह जाता हूँ, मेरे अंदर से वो रूहुल कुद्स की जो एक मामूरी है वो कम हो जाती है, मुझे हर रोज भरना है उससे, ताकि मैं दूसरों को शेयर कर सकूं। खुदावन चाहता है। इसी तरह हमने यहाँ पर पढ़ा कि पौलुस रसूल कहता है कि रूह से मामूर होते जाओ। फिर आगे हम 19वीं आयत में देखते हैं, वहां पर लिखा है, और आपस में मजामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहे, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। रूहुल कुद्स से मामूर होकर जब हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं, दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते, एक आम बंदा जो है वो गा रहा है, एक तो जो जानने खुदा की हुजूरी को जानता है, खुदा से वाकिफ है, वो उसको परख परख लेता है कि ये बंदा किस तरह गा रहा है, ये इसका लेवल क्या है, इसकी रूहानियत का लेवल क्या है। तो जो रूह से मामूर शख्स है वो इस बात को जान जाता है कि नहीं, ये किस तरह की प्रस्तिश कर रहा है, किस तरह से गा रहा है, किस तरह की इसकी लाइफ है, इसका बोल चाल, इसका चाल चलन कैसा है। तो एक रूह से मामूर शख्स के लिए जो है वो जरूरी है कि वो इन बातों को भी वो जानता है और समझ जाता है। तो इसीलिए खुदा का कलाम हमें भी कहता है कि हम रूह से मामूर होते जाएं, हर रोज, हर लम्हा, हर वक्त हमें खुदा के कलाम से, खुदा के रूह से भरना है। उसकी मामूरी हमारी जिंदगी में होनी चाहिए, और ये मामूरी जो है हमारी जिंदगी में हमारा एक जो जिंदगी गुजारने का एक तरीका है वो बनना चाहिए, ताकि हम खुदा के रूह से मामूर होते रहें और हमारे एक खिदमत में होते हुए, एक सच्चे ईमानदार होते हुए, वफादारी से हम खुदा के साथ जब हम चलते हैं, ये भी चाहिए कि हम रूह से मामूर होकर लोगों तक पहुंचे और लोग जाने, और फिर गवाहियां कायम हो। फिर ही कलीसिया बचेगी, फिर ही कलीसिया के जो लोग हैं लोग बचेंगे, हमारे इलाकों में, हमारे मुआशरे में लोग खुदावंद से वाकिफ हो सके। लेकिन शर्त ये है कि हम रूह से मामूर हो, हम रूह से भरते जाएं, हम खुदा के कलाम से वाकिफ हों, हम हर रोज रूहुल कुद्स का मुकाशफा हासिल करें, हर रोज हम रूहुल कुद्स से धुलें, जिस तरह पतरस, जिस तरह पौलुस, स्तिफनस जो हैं वो रूहुल कुद्स से मामूर होते रहे और खुदावन के मुकाशफात को हासिल करते रहे, दुनिया तक पहुंचाते रहे, और खुदावन का कलाम फैलता रहा। तो जरूर है कि हम भी रूहुल कुद्स से मामूर होते रहे, हम हर रोज खुदावन की कुदरत से वाकिफ होते रहे। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है, शराब में मतवाले ना बनो, बल्कि क्योंकि इससे बदचलनी वाकई होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। रूह हमें जो है वो एक तरीकेकार बख्शता है, उसकी मामूरी जो है हमें डिसिप्लिन करती है और हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताती है, मुहैया करती है कि हमने किस तरह इस दुनिया में रहना है, किस तरह हमने खुदावन के साथ चलना है, किस तरह हमने खुदावन के साथ अपना ताल्लुक बनाए रखना है, और किस तरह हमने दूसरों को खुदावन की बादशाही में लेकर आना है।
तो जरूर है कि हम हर रोज रूहुल कुद्स से मामूर होते रहें। जितने भी हमें इस मैसेज को सुने, मैं उनसे यही कहूंगी कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि क्या मैं रूह से मामूर होता हूँ, क्या मेरे अंदर खुदावन के रूह से मामूरी की तड़प है, या मैंने सिर्फ एक बार ही तजर्बा कर लिया, उसके बाद मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैंने रूहुल कुद्स से मामूर होना है। क्योंकि कलाम कहता है कि ये एक मुसलसल अमल है, ये रुकना नहीं चाहिए, ये मुसलसल अमल है। बार बार हमें रूह कुद्स से मामूर होना है, ताकि हर हर रोज हर वक्त हम रूह से मामूर होते रहे, हम धुलते रहे, हम पाक होते रहे, ताकि हम खुदा के लायक ठहर सके। तो खुदावन इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। जितने भी सुनने वाले हैं वो इस कलाम को अपनी जिंदगियों में जगह दें, क्योंकि उसका कलाम सच्चा है, उसकी बातें सच्ची हैं, वो वफादार है। जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम खुदावंत के साथ जुड़े और खुदा हमें छोड़ दे या खुदा हमें भूल जाए। तो जरूर है कि हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में जगह दें, हर रोज रूह से भरते जाएं, ताकि खुदावंत का रूह जो है हमारी जिंदगियों में भरता जाए। हम और लोग जाने कि ये बंदी जो है वो खुदा के रूह से वाकिफ है, खुदा के रूह को जानती है, खुदा के रूह के मुताबिक जिंदगी गुजार रही है। तो खुदावन इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।